Okay, keeping that picture in mind, फिर चला गया। अभी दिख रहा है स्क्रीन आपको? Yes, sir. Yes, sure, Dikshit. ओके, कीपिंग दैट पिक्चर इन माइंड, लॉक एंड की अभी बनाएंगे, आगे उसका डिस्कस करेंगे, फिर बता देंगे आपको। चला गया वो पिक्चर। ठीक है, एंजाइम्स जो हैं बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक होते हैं, और ये काफी पहले 1890 में ही फिशर नाम के साइंटिस्ट थे, इन्होंने 1890 में इन्होंने दिया था that because the enzyme had a particular shape into which substrate or substrate, एक substrate या एक से अधिक substrate can fit into its active site or sites. So this he has postulated lock and key hypothesis. लॉक एंड की हाइपोथेसिस में जो बातें कही गई, ओके, सारी बातें सही हैं एक्सेप्ट वन। तो उसमें फिर मॉडिफिकेशन किया गया, कुछ बात ऐड की गई, और उसके बाद एक नया हाइपोथेसिस बना। तो चूंकि ये बहुत पहले की बात है, इसमें ज्यादा साइंस का विकास भी नहीं हुआ था, टूल्स भी नहीं थे, तो इस समय भी इन्होंने काफी ब्यूटीफुली इन्होंने एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच में क्या रिलेशन है उसको इस हाइपोथेसिस के माध्यम से इन्होंने बताया। क्या कह रहा है हाइपोथेसिस? अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस, shape of active site of enzyme is complementary to the shape of substrate molecules. कहने का मतलब हुआ कि substrates are like a key whose shape is complementary to the enzyme, which is supposed to be locked and then fit perfectly. So the shape of the active site fits with the shape of the substrate. More accuracy in the fitting, more specificity will be there. Okay. So इस लॉक एंड की में आपका जो फिटिंग हुआ एंजाइम का सबस्ट्रेट के साथ, that brings about the specificity of the enzyme, and that is also helpful in, that also contributes in lowering down activation energy barrier. वो हम इसके बाद आपको बताएंगे। फिर enzyme catalyze only those substrates which fit perfectly on the active site of that enzyme. The substrates are discarded when they do not fit. Enzymes will not convert those chemical species which do not fit into its active site. Okay. Most enzymes are far larger than the substrate molecules. Substrate molecules are smaller and enzyme molecules are bigger. Okay. Substrate molecules that act on the active site is usually a very small portion of the enzyme. This active site is very small portion of the enzyme. Enzyme is quite big. Active site is small, very, very small. And very few number of amino acids are involved here in the formation of the active site. This is the catalytic domain. Okay. So what is the purpose of the remaining amino acids?
the remaining amino acids which make the bulk of the enzyme, they functions to maintain the correct globular shape of the enzyme. Okay, so the amino acids present here, they maintain the globular shape or biologically active conformational, functionally conformational shape और कॉन्फ़िगरेशन को मेंटेन करने के लिए इतना ज्यादा अमाइनो एसिड्स की नीड है. Okay. Once the product is formed, the products are no longer fit into the active site and it escapes into surrounding medium. According to this lock and key model, enzymes behave as rigid molecule. इस पॉइंट पर आप ध्यान दीजिएगा. यह पॉइंट लॉक एंड की हाइपोथेसिस में ही फिशर ने दिया था. And this point is rejected now. So accept these. All these points, 4 points जो अभी मैंने आपको बताया, ये 5वां पॉइंट, यह रिजेक्ट हो गया with the modern accumulation of the knowledge, recent accumulation of the knowledge, that what it says, according to lock and key model, enzymes behave as rigid molecules. However, most enzymes are globular and are flexible with varying shape. So, ये कह रहा है कि rigid है, लेकिन असलियत में enzyme molecules, enzymes are globular and flexible. What happens after binding with the its substrates into its active site? 3-dimensional conformation of the enzyme changes. So in reality, enzyme is not rigid, it is flexible. So this point of the hypothesis is rejected. So the whole hypothesis is modified into a new hypothesis, new model, that is called as, that new model is induced fit model. This model was given in 1959 by Koshland. He suggested a modification to the lock and key hypothesis. And this new hypothesis is known as induced fit hypothesis or induced fit model. So what it says, because there at that time accelerated crystallography हो रहा था, उससे active site में क्या conformation है, when enzyme bound is bound to substrate, then the conformation is different. Okay, without substrate the conformation is different. तो इस समय एक्सेलरेटेड क्रिस्टोग्राफी आ गया था और इसे पता लगा रहे थे लोग. तो उसके बाद इन्होंने देखा कि नहीं, सबस्ट्रेट से बाइंड करने के बाद एंजाइम का कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है. So that's why they have postulated this hypothesis. So all those evidences generated from those crystallography data, it has suggested that some enzymes and their active sites are more flexible. So by adding this, he proposed that the active site can modify its shape as the substrate interact with the enzyme. Okay, this is induced fit hypothesis. So all these 4 points, लॉक एंड की हाइपोथेसिस का 5वां पॉइंट को छोड़ के फिर ये पॉइंट आप जोड़ दोगे तो वो सब इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस के पॉइंट्स हो जाएंगे. तो लेकिन अगर इंड्यूस्ड फिट ही से पूछा
तो आप लिखोगे जो पॉइंट्स अभी बता रहे हैं 1959 के बाद ऐड, न्यू नॉलेज के बाद एडिशन हुआ। तो अकॉर्डिंग टू दिस the active site can modify its shape as the substrate interact with the enzyme. Next point, the amino acids which make up the active site are molded into precise shape which enable the enzyme to perform its catalytic function most efficiently. Okay. अमाइनो एसिड जो एक्टिव साइट में है प्रेजेंट, वो इस तरह से उनका शेप मोल्डेड है प्रिसाइजली that they are enabling the enzyme to perform its catalytic function most efficiently. Okay, जैसे कि कोई functional group है which is involved in that enzymatic reaction, so that functional group will be exposed in the active site. It will not be buried inside, it will be open, it will be exposed in the active site so that the substrate molecule, when it fits in, it will align with that moiety present in the substrate, which will interact with this functional group present in the active site of that enzyme. Okay. यह एक्टिव साइट जो एंजाइम में फंक्शनल ग्रुप है किसी एक अमाइनो एसिड से आया, वो इस तरह से पोजीशन है इस एक्टिव साइट के भीतर भी कि जब सबस्ट्रेट फिट होगा तो सबस्ट्रेट के जिस केमिकल मॉइटीज पर ये अटैक हो करेगा या जहां पर केमिकल रिएक्शन होना है, जहां पर कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होना है, वहीं पर जाके ये अलाइन हो रहा है. सो इट इज ब्यूटीफुली फिट ओवर देयर, प्लेस्ड ओवर इट. जैसे कि तो ये फिट हो जाएगा. ठीक है, इतना बात आप समझ गए. दिस इज ऑल अबाउट induced fit hypothesis. Okay, clear student? Yes, sir. Yes, sir. Now coming to the enzymatic mechanism of enzyme reaction. I'm coming on this. How enzyme catalyze the reaction? You might be wondering. तो मैं एक ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं बच्चों, आप उसके माध्यम से समझें.
दिख रहा है स्टूडेंट्स आपको ये? यस सर। इस ग्राफ से आप क्या समझ रहे हैं स्टूडेंट्स? बताइए। पहले आप ये बताइए, इज दिस रिएक्शन एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक? हेलो, यस सर। इज दिस यस सर। एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक? इस रिएक्शन में एनर्जी रिलीज हो रहा है कि एनर्जी कंज्यूम हो रहा है? रिलीज हो रहा है सर। कंज्यूम। कौन बोल रहे हैं कंज्यूम, कौन बोल रहे हैं रिलीज? मेरे को नाम भी जानना है। अरे यार, नाम जानने के चक्कर में मैं ये निकाला और इसमें ये लकीर पड़ गई। अब बताइए, कौन कह रहे हैं एक्सोथर्मिक, कौन कह रहे हैं एंडोथर्मिक? जल्दी बोलो भैया। इंडोथर्मिक ही होगा सर, कंज्यूम होगा एनर्जी। इसमें एनर्जी कंज्यूम हो रहा है?
यस सर, पर एंजाइम्स को थोड़ा कम कर देता है कंज्यूम एनर्जी, मतलब कम एनर्जी में ही रिएक्शन कम हो जाता है Really? कंप्लीट। Really? ठीक, आर यू श्योर? एनर्जी कंज्यूम हो रहा है, दैट मीन्स इट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। लेकिन सर जहाँ पे सबस्ट्रेट बाइंड करता है एंजाइम से, वहां पे एनर्जी रिलीज होता है, क्योंकि वहाँ बाइंड हो रहा है तो वहाँ पे एनर्जी रिलीज होता है। अभी तुम सिंपली सोचो ना, रुको, अभी सबस्ट्रेट एंजाइम के बिना भी सोच के देखो, सिंपली सोचो, देखो 1 सेकेंड मैं बताता हूँ। यू आर रॉन्ग, दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आप देखिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या कहता है, फ्री एनर्जी स्टेट ऑफ द सबस्ट्रेट इज डेल्टा जी नहीं, G of the substrate is higher than the free energy of the products. इंटरनल एनर्जी सबस्ट्रेट का ज्यादा है और इंटरनल एनर्जी प्रोडक्ट का उससे कम है, तभी तो रिएक्शन के बाद एनर्जी रिलीज होगा एंड यू विल गेट द वैल्यू डेल्टा जी इन नेगेटिव। Yes, sir. प्रोडक्ट में कम होगा, दैट मीन्स द एनर्जी हैज रिलीज्ड। सबस्ट्रेट में ज्यादा है, प्रोडक्ट में कम है, द एनर्जी इज रिलीज। अब यहाँ देख के बताइए प्रोडक्ट में ज्यादा फ्री एनर्जी है कि सबस्ट्रेट में? Substrate. सबस्ट्रेट में ज्यादा एनर्जी है, फ्री एनर्जी है, देखिए ग्राफ में, और प्रोडक्ट में कम है। क्या हुआ, ये एनर्जी रिलीज हुआ कि कंज्यूम हुआ? रिलीज हुआ सर। फ्रॉम द इनिशियल स्टेट टू द फाइनल स्टेट, इस जर्नी में भले ही बीच में ज्यादा लगा, इसको भूल जाओ, फाइनल और इनिशियल के बीच में एनर्जी रिलीज हुआ कि कम हुआ? कम हुआ। Yes, sir. Come on. एक्सोथर्मिक रिएक्शन कैटलाइज्ड बाय एंजाइम। ओके, इसमें एंजाइम कैटलाइज्ड भी शो कर रहा है, एंजाइम इसको कैटलाइज नहीं कर रहा है वो भी है। देखिए सबस्ट्रेट जो है उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने से पहले सबस्ट्रेट को एक्टिव होना पड़ता है, यानी समझिए कि बॉन्ड को ब्रेक करना है, तो उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड, तभी नए प्रोडक्ट बनेंगे। बॉन्ड्स जो है सबस्ट्रेट में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स, दोज कोवेलेंट बॉन्ड्स, those bonds will be broken, then the new product will be formed। तो पहले बॉन्ड ब्रेक होगा तभी न्यू प्रोडक्ट बनेगा, न्यू प्रोडक्ट पहले बने बाद में बॉन्ड ब्रेक हो, ऐसा तो नहीं हो सकता है। ओके, फ्यूचर तो बाद में ही आएगा, पास्ट में नहीं आ सकता, प्रोडक्ट इज द फ्यूचर। तो पहले बॉन्ड ब्रेक होगा, तो बॉन्ड के ब्रेक होने में एनर्जी इज रिक्वायर्ड, दैट्स व्हाई द सबस्ट्रेट इज रिक्वायरिंग दिस एनर्जी व्हिच इज कॉल्ड एज एक्टिवेशन एनर्जी। Okay, I found this on the web for is requiring this, which is called as activation energy. Check it out. Siri stop। ये अपने आप ले लेता है, पता नहीं कहां से। ठीक है, तो सबस्ट्रेट को एनर्जी देना पड़ेगा ताकि एक्टिवेट हो, इनके बॉन्ड्स ब्रेक हो, उसके बाद फेवरेबल कंडीशन है, न्यू बॉन्ड्स विल बी फॉर्म्ड एंड न्यू प्रोडक्ट्स विल बी फॉर्म्ड। ठीक है, बॉन्ड फॉर्मेशन होने की वजह से प्रोडक्ट बना, ऐसा नहीं कि प्रोडक्ट बना तब बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड फॉर्मेशन की वजह से नाउ दैट इज कॉल्ड एज न्यू प्रोडक्ट। तो अगर एंजाइम कैटलाइज रिएक्शन नहीं है, देन एक्टिवेशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट। और अगर
if the enzyme is catalyzed by an enzyme, that reaction is catalyzed by an enzyme, then activation energy barrier is lowered down by this enzyme. How? एंजाइम ऐसा क्या जादू का छड़ी चला दिया कि एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर कम हो गया? सी, दिस डेल्टा जी इज द फ्री एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, ठीक है, इन द अब्सेंस ऑफ एंजाइम. दिस डेल्टा जी, द सेकेंड डेल्टा जी इज द एक्टिवेशन एनर्जी विद द एंजाइम. कितना कम हो गया? पहले ज्यादा लग रहा था इन द अब्सेंस ऑफ एंजाइम, नाउ इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम only this much energy is required to be supplied for this reaction to occur. Okay. Overall जो प्लस माइनस हुआ, जोड़ घटाव, कि इतना एनर्जी बॉन्ड फॉर्मेशन होने के बाद रिलीज हुआ. यहां तक पहुंच गया. दिस इज द ट्रांजिशन स्टेट. ट्रांजिशन स्टेट के पीक पर से दिस मच एनर्जी इज released. Okay, लेकिन this much energy was consumed, ये energy barrier के लिए. So the net total of is this energy, this delta G. So this is the net change in the free energy, and that net change in the free energy is released. Will be released. So the X, so this overall reaction is exothermic. Okay students, ये समझ में आया आपको? Yes sir. तो आप कहोगे कि ऐसा क्या कर दिया एंजाइम इसमें जो कि इसका एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर इज लोअर्ड डाउन. अब उसको छलांग मारने में आसानी है, बैरियर नीचे कर दिया, घुस के नहीं पार हो सकता है, इसको छलांग मार के जाना पड़ेगा. तो जब बैरियर ही नीचे कर देंगे तो आसानी से छलांग मार लेगा. जब बैरियर ऊपर था तो उसको पूरा चढ़ना पड़ेगा, तो रेट ऑफ द रिएक्शन इज लेस. जब बैरियर छोटा हो गया, धुलक के तुरंत फिर फास्ट हो जाएगा रिएक्शन. कैसे एंजाइम कर रहा है इसको? यही कंसेप्ट को यूज करके कि the formation of new bonds releases the energy. एंजाइम ने अपने एक्टिव साइट को इस तरह से मॉडिफाई कर लिया है with the presence of special functional groups in the pocket, that the interaction with the substrate in that active site releases energy. Because active site at the active site substrate is fitting perfectly, and substrate and enzyme and the species chemical moieties, chemical species present in the functional group, active site are forming a temporary bonding over there with the substrate, and with this favorable bonding with the substrate there might be many non-covalent interaction also there. And because of this binding and perfect fitting into the active site of the enzyme, this substrate, it releases energy because bonding is there. New bonds are being created. So energy is released, and that released energy is compensated for this activation energy. So this much energy which is released when substrate is bound with the enzyme in its active site, because of that binding, energy is released, and that energy is compensated now in this. So only now this much energy is extra energy is required for this reaction to occur. Okay, समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? Yes sir. अब आप इसमें वेरिएशंस आते हैं.
कल्पना कर सकते हैं कि सपोज कौन सा कलर यूज करो, ग्रीन। सपोज if a reaction, forget the word catalyzed or uncatalyzed, तो सब भूल जाओ, या मान लो कि चलो catalyzed enzymatic reaction, just imagine, suppose if a reaction is having the peak like this, enzymatic reaction है या बिना नॉन एंजाइमेटिक रिएक्शन। अब आप बताइए कि ये जो ग्रीन लाइन वाला जो रिएक्शन है, द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ दिस रिएक्शन इज हायर और लोअर कंपेयर टू दिस, द पिंक वन। द रेट ऑफ रिएक्शन लोअर होगा। okay, the rate of reaction will be lower as the activation energy barrier is higher. As the activation energy barrier becomes lower, okay, rate of reaction increases. Okay, suppose I give you a hypothetical situation. If orange, if a reaction curve is like this is substrate, what will you say about this type of reaction? Forget about catalyzed or uncatalyzed. Like, what type of reaction will be this? Exothermic? Yes? Yes, sir. Exothermic तो clear है. This is exothermic. Highly exothermic? Yes, sir. Fast to बहुत ज़्यादा। Yes, highly exothermic. What about spontaneity? क्या spontaneous होगा? खुद ब खुद स्वतः हो जाएगा, बिना कोई एनर्जी दिए, बिना कोई एनर्जी दिए। Yes, sir. Spontaneous. ठीक, स्पॉन्टेनियस है। अगर एंजाइम नहीं है तो भी ऐसा कर्व है मान लो, तो बिना एनर्जी दिए वो स्पॉन्टेनियसली वो कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट में क्विकली, क्योंकि कोई बैरियर नहीं है, लुढ़क जाएगा तुरंत, इसका डिके हो जाएगा, एक्सेलरेटेड डिके। और इस तरह का कर्व आप किस तरह के रिएक्शंस में पाते हैं, पाएंगे? केमिकल रिएक्शंस, एनी आइडिया? एंजाइमेटिक रिएक्शन नहीं है ऐसा कोई भी, केमिकल रिएक्शन लेकिन है। ये जो बम विस्फोट वगैरह जो करते हैं आतंकवादी, आईईडी ब्लास्ट वगैरह, वो इसी तरह का रिएक्शन है, इसमें ब्लास्ट हो जाएगा। ठीक है, सबस्ट्रेट जो है स्वतः ही खुद ब खुद जल्दी आपस में रिएक्ट करके धमाका कर दिया, तुरंत एनर्जी रिलीज कर दिया। ओके, तो कैसे रोका है? तो सबस्ट्रेट कहोगे तो धमाका हो जाएगा खुद ब खुद सारा, तो सबस्ट्रेट बचा कैसे रहेगा? तो ऐसा नहीं है कि एक ही सबस्ट्रेट है, देयर आर नंबर ऑफ सबस्ट्रेट्स, दिस प्लस दिस, आई एम नॉट गोइंग टू टेक द नेम, नहीं तो ये कानूनी बन जाएगा। दिस प्लस दिस प्लस दिस, 1 + 2 + 3, ठीक है, ये सारे सबस्ट्रेट मिल गए, रिएक्शन रेट, रिएक्शन कर्व विल बिकम लाइक दिस। ये हो गया आपका एक्सपोनेंशियली, इसका रिएक्शन रेट विल बिकम हायर एंड क्विकली ऑल द सबस्ट्रेट विल बी कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट, रिलीजिंग ए ग्रेट अमाउंट ऑफ एनर्जी। और जब ग्रेट अमाउंट ऑफ एनर्जी एक साथ रिलीज होता है तो एनर्जी कई फॉर्म में निकलते हैं, क्योंकि सारा एनर्जी जो है हीट के फॉर्म में निकल के रिलीज हो जाए पॉसिबल नहीं है। तो फिर एनर्जी, कुछ एनर्जी हीट, कुछ एनर्जी साउंड, कुछ वाइब्रेशन, कुछ इस तरह से सब मिला करके एनर्जी, एक लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुआ, एंड दैट हैज द इम्पैक्ट, ग्रेट इम्पैक्ट ऑन इट्स सराउंडिंग। तो इसको रोक के रखा रहा,
वो अपने डिवाइस में सबस्ट्रेट नंबर 3 इज इनएसेसिबल, ये एक चेंबर में है एंड द सबस्ट्रेट 3 इज इन अनदर चेंबर by separated by a compartment. And suppose if any controlled regulatory device or by which ignition can be given and this barrier is removed, now these substrates are reacting quickly, it will, इसी को बोलेंगे डिफ्यूजन। डिफ्यूज कर दिया और ये जो है आपका ब्लास्ट हो जाएगा। क्विकली all the substrate will be converted into product and the energy will be released. समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? Yes, sir. तो देखिए एंजाइम कैसे कर रहा है इसको, कि जो रिएक्शन को हर रिएक्शन को जरूरत है एक्टिवेशन एनर्जी की, क्योंकि पहले बॉन्ड ब्रेक होना ही होना है किसी भी रिएक्शन में, तो एक एक्टिवेशन एनर्जी होगा ही होगा।